इस बहुत सुंदर अवसर पे हम सब एकत्र हुए हैं और हम सब आज माननीय, हम उनको प्रेम से बाबा जी बुलाते हैं, उनका पूरा परिचय भी हम अभी लेंगे। उनके सानिध्य में हम इस कुछ समय को बहुत आनंद से बिताने वाले हैं। उससे पहले हम इस अनौपचारिक कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे। आरामदायक स्थिति में सभी बैठेंगे, सहजता से आंखें बंद करेंगे। हम सभी 3 ओंकार एक साथ करेंगे, उसके बाद प्रार्थना होगी। श्वास भरिए। माननीय बाबाजी उपस्थित है। आपનું મૂળ નામ છે માનનીય નંદલાલજી જોશી। आप 69 માં રાજસ્થાનથી આપણે એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરીને પ્રચારક તરીકે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં જોડાયા। ત્યારબાદ રાજસ્થાનના અલગ અલગ વિભાગ અને પ્રાંતોમાં આપણું દાયિત્વ રહ્યું। પ્રચારકોના પ્રમુખ તરીકે ક્ષેત્રનું પણ આપણી પાસે દાયિત્વ રહ્યું અને વર્તમાનમાં આપની પાસે કુટુંબ પ્રબોધનના રાષ્ટ્રીય ટોલીના સદસ્યનું દાયિત્વ છે। આજે આપણે એમને સાંભળવાના છીએ। એની સાથે જ આપની સાથે માનનીય કિશોરજી ટોકેકર ઉપસ્થિત છે। આપની પાસે અખિલ ભારતીય સંયુક્ત મહાસચિવનું દાયિત્વ છે। આપણું જોડાવાનું જીવનવ્રતી તરીકે સન 1990માં થયું। 2001 થી આપની પાસે અખિલ ભારતીય સંયુક્ત મહાસચિવનું દાયિત્વ છે અને એની સાથે વિશેષ દાયિત્વ મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહાર અને ઉત્તર પ્રાંતનું દાયિત્વ છે। એની સાથે સાથે વિવેકાનંદ ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન દિલ્હીમાં આપ ટ્રસ્ટીનું દાયિત્વ વહન કરી રહ્યા છો। આપણી સાથે માનસ ભૈયા, આદરણીય માનસ ભૈયા ઉપસ્થિત છે। ભાઈ કેન્દ્રના જીવનવ્રતી કાર્યકર્તા અને વર્તમાનમાં ઉત્તર પ્રાંતના પ્રાંત સંગઠકનું દાયિત્વ આપની પાસે છે। આ સાથે જ સુરત વિભાગના આદરણીય અમરીશભાઈ પરાજિયા। ભાઈ સ્વામી વિવેકાનંદ સાર્ધશતી સમારોહથી જોડાયા અને આપની પાસે હમણાં ગુજરાત પ્રાંત નિધિ ટોળી પ્રમુખનું દાયિત્વ છે। આદરણીય કનકસિંહ ચૌહાણ હમણાં અમુક સમયમાં આપણી સાથે ઉપસ્થિત થશે, વિભાગ પ્રમુખનું દાયિત્વ છે। આદરણીય સંજયભાઈ પંડ્યા આપની પાસે સુરત વિભાગના વિભાગ સંપર્ક પ્રમુખનું દાયિત્વ છે। હવે હું પ્રાસ્તાવિક ઉદ્બોધન માટે આદરણીય અમરીશભાઈને આમંત્રિત। પ્રણામ। આપણી સામે દિવાળીનો એક મોટો પર્વ છે અને આવા બિઝી શેડ્યુલથી તેમ છતાં પણ એક શોર્ટ નોટિસમાં એટલે 2 દિવસ પહેલાં જ નક્કી થયું અને બધાને કહ્યું અને આજે આટલી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છો એ બદલ વિવેકાનંદ કેન્દ્ર તરફથી હું બધાનો આભારી છું। બેને જે રીતે કહ્યું માનનીય નંદલાલજી તો 1968થી એક પ્રચારક જીવન જીવે છે અને માનનીય કિશોરજી તો એ 1990થી જીવનવ્રતી કાર્યકર્તા છે કેન્દ્રના। માનસ ભટ્ટાચાર્યજીની પરિચય આપ્યો। જેમ આપણે દિવાળીમાં પરિવાર સાથે સ્નેહ મિલન અથવા તો આપણે પર્વની ઉજવણી કરતા હોય એમ કેન્દ્રમાં જ્યારે પ્રચારક ભાઈ બહેનોને આપણે કહીએ તો એમ કે અમે 4, 5, 6 સદસ્યો છે પરિવાર છોડી અને 130 કરોડની જે ભારતીય આપણી ભાઈ બહેનો છે એ જ અમારો પરિવાર છે એમ। એટલે આજે એમનો પણ 3 દિવસનો વર્ગ હતો અહીં આપણા નિવાસ સ્થાને અને છેલ્લા 3 દિવસથી આજે સમાપન છે। તો આપણે બધા એમની સાથે જોડાયા તો એમને ખરેખર એવું લાગે કે ના અમે પરિવાર એટલે આપણે બધા પરિવારના સદસ્યો જ છીએ એ રીતે। અને જે રીતે અત્યારે અયોધ્યામાં પણ આપણે જોયું કે રામ મંદિર જે રીતે ભવ્ય વાતાવરણથી બની રહ્યું છે અને દિવાળી ઉજવાઈ રહી છે તો જે આપણા હયાતીમાં આપણે રામ મંદિર બનતા જોઈ રહ્યા છીએ એવી જ રીતે કન્યાકુમારીમાં 1970માં વિવેકાનંદ રોક મેમોરિયલ બન્યું હતું અને એના પછી 1972માં એક જીવંત સ્મારક એટલે વિવેકાનંદ કેન્દ્ર જે આપણી આ સંસ્થા છે એની સ્થાપના થઈ હતી। અને વિવેકાનંદના જે વિચારો હતા કે યુથ જે છે એમની પર એમને શ્રદ્ધા હતી અને દેશ જે છે ફરીથી પરમ વૈભવશાળી બનાવવો તો એની માટે એક સંસ્થા છે જે કાર્યરત છે। સુરત આપણો જે વિભાગ છે એ નર્મદા નદીથી લઈ અને વાપી સુધી એટલે લગભગ 7 જિલ્લાઓ આવી જાય અને અત્યારે એવો નિર્ધાર કર્યો છે 50 વર્ષ થયા વિવેકાનંદ કેન્દ્રના 1972માં સ્થાપના થઈ હતી 2022 તો આને લઈ અને જે ક્ષેત્રમાં હજુ સુધી આપણે પહોંચ્યા નથી તેવો આપણો દુર્ગમ અને જે વનવાસી ક્ષેત્ર છે ડાંગ ત્યાં આપણે એક પ્રકલ્પ ચાલુ કર્યો છે। ત્યાં આપણા 2 ખાંભડા અને બીજું એક ગામ છે ત્યાં આપણા આનંદાલય ચાલે છે અને આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે દિવ્યભાઈ કરીને બરોડાથી અને દાહોદથી આપણા રાજનભાઈ છે। તો બંને છેલ્લા
લગભગ 8 મહિનાથી આપણે ત્યાં પ્રકલ્પ ચાલુ કર્યો ત્યારથી ત્યાં રહે છે અને ત્યાં આનંદાલયના માધ્યમથી ત્યાં ગુણાત્મક બાળકો છે, એની અંદર રાષ્ટ્રપ્રેમ અને આપણી સંસ્કૃતિ છે એનું જતન થાય એ કાર્ય કરી રહ્યા છે. આપણે જ્યારે નક્કી કર્યું કે ડાંગ ક્ષેત્રની અંદર આપણે વિવેકાનંદ કેન્દ્ર જશે તો એ વખતે ત્યાં એક માલેગાંવ સાપુતારાથી નીચે છે, ત્યાં માન્ય પીપી સ્વામી છે જે છેલ્લા 20 વર્ષથી એક્ટિવ છે, અને એક સબરીધામ આપ બધા ગયા હશો અસીમાનંદજી છે. તો બંને સંન્યાસી અને સાધુઓની પ્રેરણાથી વિવેકાનંદ કેન્દ્ર છે એને નક્કી કર્યું કે આપણે ત્યાં આપણું કાર્ય શરૂઆત કરવી છે. તો એ સૌથી પહેલાં ત્યાં માનનીય સંજયભાઈ છે લઈ અને નોર્થ ઇસ્ટ એટલે વિવેકાનંદ કેન્દ્રની સ્થાપના થયા પછી સૌ પ્રથમ એક્ટિવ જે થયું એ નોર્થ ઇસ્ટમાં આસામ અરુણાચલ થયું, અને શિક્ષણના માધ્યમથી એટલે CBSE આપણી 70 જેટલી શાળાઓ છે અને અંદાજે ત્યાં 30,000 બાળકો ભણી રહ્યા છે. તો આપણે જોઈએ કે રિઝલ્ટ આવે 150, તેમાંથી 110 સ્ટુડન્ટ તો આપણા ફક્ત વિકેવીના હોય, અને ત્યાંથી અત્યારે મિલિટરી IAS ઓફિસરો બધા બન્યા છે. અને આપણને એમ લાગે જે ગયા હોય 2014 પહેલાં કે નોર્થ ઇસ્ટ કેટલું દુર્ગમ છે, અને ત્યારબાદ આજે જોઈએ કે ભારત સાથે જોડાયેલું છે. તો 4,000 કિલોમીટરનો આંતરરાષ્ટ્રીય જે સરહદ છે જે ફક્ત 22 કિલોમીટર સિલીગુડી પાસ આપણે ચિકનને સાંભળતા હોઈએ જોડાયેલ છે. તો આ વિસ્તાર આજે પણ ભારતનો અભિન્ન અંગ છે. એની પાછળ આ જ રીતે કેન્દ્ર અને બીજી એવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ છે, એનું મૂળભૂત કાર્ય જે છે એ પરિણામ સ્વરૂપ આજે આપણે જોઈએ છીએ. તો દુર્ગમ ક્ષેત્રની અંદર જે વિવેકાનંદ કેન્દ્રની કાર્ય કરવાનો એક અનુભવ છે એનો લાભ લઈ અને ગુજરાતની અંદર દાહોદ ગોધરા છે જે બરોડા વિભાગમાં આપની સાથે લોકેશભાઈ બેઠા છે એ ત્યાંના જીવનવ્રતી છે. તો દાહોદ પણ આપણે એક એક્ટિવ શરૂ કર્યું છે, પછી ડાંગ આહવા અને બીજું કચ્છ, આ ત્રણેય વિસ્તારની અંદર વિવેકાનંદ કેન્દ્ર છે એને એક્ટિવિટી શરૂ કરી છે. અમારા 4 આયામો છે કેન્દ્રના. એક સંસ્કાર વર્ગ એટલે આજે 1000 વર્ષની ગુલામી પછી પણ આપણે જોઈએ કે આજે પણ આપણે હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિ જીવિત છે. એની પાછળનું કારણ જે છે કે આપણા હજુ સંસ્કારો જીવિત છે, અને સંસ્કારોનું જતન કરવાનું નાનામાં નાનું સંગઠન એટલે આપણો પરિવાર છે. તો આ જે પરિવાર છે એની અંદર સંસ્કારોનું સિંચન થાય એ રીતે સંસ્કાર વર્ગ ચાલે છે. બીજું સ્વાધ્યાય વર્ગ એટલે આપણે જે ભણીએ છીએ વારંવાર વાતો કરી કે ચોપડીની અંદર જે ઇતિહાસ છે એ ખોટો છે, તો આપણને આપણા સંસ્કૃતિ, આપણા દેશ, આપણો ઇતિહાસ સાચો મળે અને વિવેકાનંદ છે ને સારા વિચારો હોય એ રીતે યુવાઓ વચ્ચે આપણે સ્વાધ્યાય વર્ગ લઈએ છીએ. બીજું આપણે યોગની વાતો કરીએ તો ગણિતમાં આપણે ભણતા હોઈએ યોગ અને વિયોગ. વિયોગ એટલે છૂટા પડવું, યોગ એટલે જોડાવું. તો વ્યક્તિનું સમષ્ટિ સાથેનું મિલન. તો એવી રીતે યોગ જે છે એ ફક્ત એક કસરત નથી, પરંતુ સ્પિરિચ્યુઅલી લેવલમાં વ્યક્તિનું સમષ્ટિ સાથેનું મિલન. તો આ રીતે યોગ વર્ગ કરીને પણ આપણા વિવિધ જગ્યાએ પ્રકલ્પો ચાલે છે. પછી ભાઈનું જે મુખ્યાલય છે VIF એટલે આપણે અત્યારે બધા અજીત ડોભાલજી નામથી પરિચિત છીએ, NSA છે. એમની આજની આયુ 76 છે. એ રિટાયર થયા પછી એમને VIF એટલે જે IAS, IFS, IPS ઓફિસર હોય, RO અને IBના ચીફ હોય, તો આ રિટાયર થયા પછી એમના જીવનનો દેશના માટે ઉપયોગ કેવી રીતે થાય એ વિચારથી લઈને માનનીય અજીત ડોભાલજીના અધ્યક્ષતામાં VIF દિલ્હી બનાવ્યું અને એ અત્યારે ત્યાં કાર્યરત છે. એવી જ રીતે VKIC વિવેકાનંદ કેન્દ્ર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કલ્ચર એટલે ગૌહાટી નોર્થ ઇસ્ટ છે, ત્યાં જે અલગ અલગ કલ્ચરો છે એના નામે વાડા પાડીને મિશનરીઓ કન્વર્ટ કરતા હતા. તો બધાનામાં કોમન શું છે કલ્ચરની અંદર, સંસ્કૃતિમાં, એને લઈ અને એ ત્યાંની જનજાતિઓ છે એમને આગળ કરી અને ત્યાં આપણું ભવન છે ગૌહાટીમાં જે આપણે સાંસ્કૃતિક પ્રિઝર્વનું કામ કરે છે. એવી જ રીતે ભુવનેશ્વરમાં અત્યારે VKICM વિવેકાનંદ કેન્દ્ર એકેડેમી ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કલ્ચર એન્ડ મેનેજમેન્ટ. તો ત્યાં આપણે યોગા, રામાયણ, મહાભારત આ બધા જે આપણા ગ્રંથો છે ફક્ત ધાર્મિક ગ્રંથો નથી, પણ આજે પણ મેનેજમેન્ટના એનાથી ઘણા બધા કસોટી લઈ શકાય. તો એ VKICM ભવન ત્યાં બન્યું છે. એવી રીતે વૈદિક વિઝન છે. આવી રીતે જ્યાં જે જરૂર પડે છે એવા પ્રકારના પ્રકલ્પો લઈને વિવેકાનંદ કેન્દ્ર એક્ટિવ છે. એટલે આપ સૌને આહવાન છે કે અમારા કોઈને કોઈ પ્રકલ્પ અને ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાઈ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણની અંદર અને વિવેકાનંદના વિચારો હતા વિશ્વગુરુ ભારત, એમાં આપણે જોડીએ. जिन इलाकों में बहुत सर्दी पड़ती है, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे भी कोचिंग के लिए कड़कड़ाती सर्दी में व्यक्ति जाता है. पूछो क्यों जाता है? कांप रहा है खप कि पढ़ाई शानदार करेंगे, नंबर शानदार आएंगे तो कैरियर भी शानदार बनेगा, इस अंदाज से वो जाता है. लेकिन इसी अंदाजों में से अनुभव आते चले गए. सुखी जीवन, सफल जीवन, सार्थक जीवन अगर जीना है तो प्रारंभ तो अपने से होगा, अपने घर से होगा. लेकिन व्यापक दृष्टिकोण नहीं रहा तो कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकता.
यूं ही मुस्कुराते हुए बिल्कुल गपशप पीते रहते। सवेरे उठते ही से चाय तो पीते ही। गुजरात में तो बहुत चलती है मेरे ख्याल से, मारवाड़ तो कम चलती है। चाय बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता। लेकिन चाय के बारे में एक बार मैंने पूछ लिया एक जवान को, वो भी प्रेम से पी रहा था। घर का बालक था, किशोर, कॉलेज में पढ़ने वाला। परिवार सब प्रेम से पी रहा था चाय। बहुत बहुत सरस बनी, बहुत अच्छी बनी, मजा आ गया। मैंने कहा ये चाय है ना, ये कहां से आई? तो बोला रसोई से आई। और रसोई से आई कैसे? तो कहा मम्मा ने बना ली। मम्मा को पूछो कि अंदर जो पत्ती डाली है चाय की पत्ती, ये क्या अपने बगीचे में है क्या? तो नो सर, बगीचे में तो नहीं है। कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। कॉलेज में पढ़ता है। कहाँ है? मालूम नहीं। मैंने कहा पूछ ले मम्मा, यही खड़े हैं। मुझे तो इतना ही मालूम है कि मार्केट से आई है। अरे मार्केट में कहां से आई? मम्मा बोली है तो असम से आई है। आप रहते हो यहाँ पोरबंदर में, आप रहते हो राजकोट में, आप रहते हो सूरत में, आप रहते हो जयपुर में, कहीं भी रहते हो। कहां से आई है, कैसे आई है? सबकी मजदूरी के अपने अपने सबको मिलेंगे, उसमें कोई किंतु नहीं है। लेकिन कितने लोगों की मजदूरी का, पसीने का इन्वेस्टमेंट है, सब मिला जुला, तब जाके मुस्कुराती चाय हाथ में आई है। घर में जिस टाइम उसको धन्यवाद दो मत दो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अनेक जाने अनजाने लोगों की तपस्या से वो आपके हाथ में फल आया है। सबके सुख सुविधा का थोड़ा सा ध्यान हमको भी करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रपंच में उलझ करके ऐसे बिखरेंगे कि पूछो मत। इतना बड़ा समाज आज की तारीख के अंदर अभी भी लक्ष्य उठा के देखो, पूरे वर्ल्ड का मैप देखते होंगे। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या, सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। भारत का आज भी कुल मिला के जो नक्शा है वो बहुत छोटों में कहलाता है ज्योग्राफिकली, या बड़ा कहलाता है? क्या कहलाता है? छोटा कहलाता है, बड़ा कहलाता है? आम तौर पर दुनिया के नक्शे में भारत की जो साइज है वो छोटों में कहलाती है कि बड़ों में कहलाती है? बड़ों में। सब मौन हो गई हैं, सीरियस हो गई, सीरियस। बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन बड़ों में ही है, चिंता मत करिए। ऑपरेशन में तो पूछो मत, थोड़ा आगे चाइना होगा भले। लेकिन केवल बोझिल मानते हैं तो उनके माथे घूम जाते हैं। हमारा देश तो बहुत संकट है जैसे। अरे ये जनशक्ति भी तो है, इसको जनशक्ति भी तो मानो। हर चीज का बैलेंस होगा तब होगा। लेकिन इतना सा समझ लीजिए कि आज भी भारत जितना बड़ा है, अनेकों देश इसके अंदर समा जाएंगे। इंग्लैंड जिसने कभी दुनिया पर राज किया था, दुर्भाग्य से हम पर भी किया था, उसकी साइज तो हमारे अनेकों प्रांतों से बड़े हैं। और पॉपुलेशन गुजरात की कितनी मुझे नहीं मालूम है, कितनी है? तो इंग्लैंड के बराबर है कि कम ज्यादा है? लो सुन लो, बोलिए जय श्री राम। एक अकेला गुजरात भी उससे आगे है तो राजस्थान भी आगे होगा। वो तो छोटा भविष्य भी नहीं है। जमीनें हालांकि ज्यादा लंबी चौड़ी, जैसलमेर जनता कम रहती है लेकिन जमीन बहुत लंबी है। फिर भी वहां भी 6 करोड़ हैं। गुजरात राजस्थान की पॉपुलेशन रफली आसपास ही है। इंग्लैंड तो और छोटा है, दुनिया पर राज किया है कभी। राज हमको नहीं करना, लेकिन इज्जत से जीना है, शान से जीना है, आनंद से जीना है। और परिवार के अपने बिल्कुल सारे बाल गोपालों को अच्छी धरोहर देकर के फिर आगे जाना है। नहीं तो इंसान किस बात के हैं। और इसीलिए इस प्रकार के विचारों का ये यहां पर इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है किसी को तरंग आई और मुफ्त में जाकर के बिल्कुल बैठ के, ऐसा नहीं हुआ है। सफल सुखी जीवन के लिए अनेक थपेड़े खा खा करके उनमें से अनुभव आते चले गए। और अनुभव में से आया
शून्य से महाशून्य तक एक मानसिक जुड़ाव नहीं हुआ तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। प्रकृति से हमारे संबंध होंगे, हर एक व्यक्ति से हमारा कोई तो भी बिल्कुल संपर्क होगा, सीधा नहीं होगा, कोई चिंता की नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरी चाय कहां से आई है, लेकिन मेरे मन में सद्भावना होनी चाहिए। धन्य उस मजदूर को भी जिसने चाय बिल्कुल वहां से पैकेट में भिजवाना शुरू तो किया। पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, और पैसे सब कुछ होते तो कोरोना में क्या दुर्गति हुई अभी भी सबको पता है। पैसे वालों की भी खतरनाक दुर्गति हो गई, हुई है कि नहीं हुई है? पढ़े लिखों की भी हो गई। हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए सफल सार्थक जीवन के लिए धीरे धीरे मंथन करते करते विश्व की धरती पर अनेकों चीजें डेवलप होती चली गई, अभी भी होती जा रही है। भारत की धरती पर एक अद्भुत बिल्कुल मंथन चिंतन चला है, और बहुत सहज रूप से आज इन्होंने अभी कहा है, आप सब क्योंकि सहज रूप से इसलिए कह दिया, ये विभिन्न प्रकार के संस्कार की गंगा वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये संस्कार क्या है? संस्कृति उसमें से निकली। ये क्या है? कोई भी निचोड़ से जो विषय बनता है वो जब साक्षात बढ़िया रूप ग्रहण करता है, आकार ग्रहण करता है, अच्छा आकार ग्रहण करे, जिन सिद्धांतों से वे कहलाएंगे सांस्कृतिक मूल्य, और उसमें से निकल करके उभर करके सुंदर स्वस्थ जीवन उभरता है। इसके बिना नहीं हो सकता। दुनिया में अपने ढंग से सबने सोचा है, लेकिन भारत के संस्कृति के प्रवाह के अंदर कुछ चीजें ऐसी अद्भुत है, नहीं तो ये जिंदा भी नहीं रहता। इन पर इतने बड़े आघात आए थे। ये गुजरात होता, होने को गुजरात जरूर होता, लेकिन गुजरात नहीं होता, ये देश भी नहीं होता। जिस प्रकार के हम पर आघात हुए वो दुनिया में जहां हुए हैं वह सब कुछ साफ हो गया, दृश्य बदल गए वहां। अब कभी खुदाई करते हैं तो कोई निकलता है तो फिर वापस डिस्कशन होता है कि ये क्या हो गया। सऊदी अरब के अंदर ये यज्ञ की आकृतियां कैसे निकल रही है, साइबेरिया के अंदर महादेव और माता जी की खंडित मूर्तियां कैसे निकल रही है, अमेरिका के अनेक स्थानों पर सूर्य मंदिर की बिल्कुल टूटी फूटी बिल्कुल शिलाएं निकल रही। ये क्या हो गया? ये यूं ही नहीं हुआ था। ये देश की धरती के चिंतकों ने एक सफल जीवन, आनंद का जीवन, इसलिए सूत्र दिया है, आनंद से जियो, दुनिया को जीने भी दो, और जीने के लिए सहयोग भी करो, तो तुम्हारा पास भी वापस एकदम रिएक्शन होकर और डबल सहयोग आने वाला है। लेकिन आज की तारीख में तो अधिकांश लोगों के तो भ्रमजाल हो गया कि मेरा 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 मेरा, ये मरे तो मरे, ये साला मरे तो मरे, तो तू सबसे पहले मरेगा। हर चीज का रिएक्शन वापस आता है। तुमने सद्भावना सरकाई तो लौट करके सद्भावना उससे भी तगड़ी होकर के तुम्हारे पास आएगी। तुमने सहयोग सरकाया प्रेम से तो वो सहयोग लौट करके निश्चित आएगा, डोंट वरी, निश्चित आएगा वो। और तुमने गुस्सा सरकाया तो गुस्सा और विकराल होकर के आएगा, तुम्हारी ऐसी दुर्गति कर देगा। और इसीलिए भारत में दोनों चित्र, कभी कभी संडे को मौके पर आप गपशप के अंदर परिवार में भी चाय पीते पीते ऐसी बातें भी इच्छा लगे तो करो तो सही। क्या कारण है कि हजारों हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, हम स्वयं बिल्कुल अपने भारत की गणना को ठीक से अगर पंचांग वालों को पूछो 200 करोड़ के आसपास कालखंड हो चुका है। और एक स्वस्थ जीवन, एक निर्भीक जीवन, एक सफल जीवन हिंदुस्तान की धरती पर रहा है। कभी भाषाएं अलग होंगी, खान पान अलग होंगे, एरिया अलग अलग होंगे, बोलियां बहुत अलग अलग होंगी, तो भी एक ही सांस्कृतिक विरासत थी। नहीं तो कश्मीर और कन्याकुमारी जुड़ा कैसे रहता? और इस समय दिवाली अभी है, अभी तो नेट पर सब आजकल उपलब्ध होता है। अब देखना, दिवाली हमने तो मनाई है, घर घर में आनंद से दीपक जलाए होंगे। भारत के बाहर जो आज भारत में नहीं कहलाते, उन देशों में भी दिवाली से जुड़े हुए कुछ काम कैसे हो रहे हैं। दिवाली या राम के नाम पर कुछ तो भी बाहर के कुछ देशों में भी कुछ 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 हो रहा है। क्या चक्कर है?
आज वो भारत नहीं कहलाते, तो हो रहा है। इंडोनेशिया, द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड वर्तमान में, और रामायण ऐसी गजब की करेंगे पूछो मत। और उनके कलाकारों को बाद में इनाम मिलते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, कभी सुना है किसी ने? वो इस्लामिक कलाकार क्या बोलते हैं कि इनाम क्या देते हो, तो सिंबॉलिक सामान्य चीज है। मेरा इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि मुझे राम का एक्शन करने का अवसर मिला। मैं परम प्रसन्न हूं। ये बोलने वाला कलाकार इंडोनेशिया में है, आज भी है। कैसे? मैं कोटा गया था, कोटा गुजरात में भी हो सकता है, मुझे गुजरात में ज्यादा नहीं घुमा, मुझे नहीं मालूम है। कोटा एक शहर है, राजस्थान के अंदर है। अनेक उनके सर्कल्स बने हुए, सड़क पर रहते ही सब जगह होते हैं। वहां बड़ी बड़ी स्टैच्यू, मूर्तियां बनती है, अपने यहाँ भी बनती है। बहुत शानदार मूर्तियों की यहाँ भी क्या कमी है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दिव्य बनी है, उसके दिव्य कैरेक्टर को दिखाने के लिए दिव्य मूर्ति भी बनी है। ये कारण से बनती है, यूं ही नहीं बनती किसी की मूर्ति। उनके जीवन के चरित्र के अंदर की बात है, इसीलिए वो बनी है। यह अलग बात है कि लेट क्यों बनी है, किसने बनाई, उसमें लोग विवाद कर सकते हैं, अपने अपने सोच है। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि ये दिव्य मूर्ति गलत बनी है। विभिन्न प्रकार के महापुरुषों की बिल्कुल मूर्तियां बनती है और रिजर्व रखते हैं। कारण यही है। कोटा में एक अनेक प्रकार की मूर्ति हैं, अपने देश के महापुरुषों की, वीरों की, वीरांगनाओं की, विदुषियों, सभी मूर्ति हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले किसी को जच गई और एक शानदार मूर्ति बनाई है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। दो योद्धा है, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते हुए योद्धाओं की मूर्ति बनी है। वो महाभारत का वो पार्ट है। इतनी सुंदर, प्रभावी है। एक बार तो कोई बिल्कुल बिना इच्छा से भी चला जाए, उधर बाई दी वे निकल जाए, तो भी उसकी स्कूटर, बाइक अपने आप रुक जाती है उधर देखते ही, और एकदम यूं टकटकी से देखता है। फिर गाड़ी बंद करता है, फिर नीचे उतरता है, फिर झूम झूम के देखता है, यार क्या गजब का ब्यूटीफुल ये बिल्कुल मूर्ति बनी है। काय की है तो कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता, तो लिखा हुआ नीचे है। महाभारत के युद्ध के अंदर विभिन्न योद्धाओं का एक बहुत अद्भुत विश्वव्यापी युद्ध था। वो भारत का युद्ध नहीं था, इसे नाम रखा है महाभारत। मध्य एशिया तक से सेनाएं आई है, ईरान इराक तक से सेनाएं भी इन्वॉल्व है, असम के आगे तक से आई है, समुद्र के अंदर के अनेक टापुओं से आई है। कभी ध्यान से कोई पढ़े तो मालूम पड़े, वो वर्ल्ड का था वो। और इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लिए उसके मैसेजेस आज भी काम के हैं। किसी ने उनको बनवाया और ध्यान से उस पर लिख देखा है। एक योद्धा का नाम है कर्ण। पांडव में था कि कौरव में था, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा आपको याद है? जोर से बोलो। कौरव था। मैंने सुना अर्जुन का भाई था। ये बाबा पुराना इसीलिए गलत सुन गया होगा, क्या था? लेकिन मालूम है ना सबको, कर्ण में केवल इशारा ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मूलतः वो पांडव होगा। लेकिन कोई भी सुपुत्र कितना भी गुणी क्यों न हो, उसके घर वाले भी अगर किसी भी कारण से उसको एक बार दूर करते हैं तो उसकी दुर्गति जिंदगी भर रहती है। ये सूत्र नहीं मोड़ना कभी। और इसे उल्टा भी ऐसा कैसा है, किसी न किसी कारण उसकी मां ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो जिंदगी भर वो दुर्गति उसकी चलती रही। और इसे उल्टा कर दो, जिनकी संतानें अपने बुजुर्गों को किसी न किसी कारण से रिजेक्ट करते। मैं आज बहुत बड़ा पढ़ लिखा, मेरी दादा, मेरी दादी, मेरी नानी, वर्ल्ड रिजेक्ट, बेकार बेकार बेकार। वो भूल जाता है कि तेरे विकास में उनका भी कोई योगदान है भाई। लेकिन जो करने लगते हैं तो बहुत दुर्गति होती है। लेकिन उस वहां पर वो लगाया क्यों है? दो योद्धाओं का बड़ा अद्भुत और खतरनाक। और महाभारत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर इस समय कर्ण ब्रह्मास्त्र नहीं अगर छोड़ता तो अर्जुन निश्चित रूप से साफ हो जाता, पांडव सब साफ हो जाते। इस सामने कौन था, सबको ध्यान आ गया होगा।
कर्ण के सामने कौन था जिसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा? ब्रह्मास्त्र का मतलब मूल तो अब तो विश्व वर्ल्ड के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि समथिंग लाइक एटॉमिक एनर्जी से संबंधित चीज है ये सिंपल चीज नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं ये मजाक नहीं है। रशियन वैज्ञानिकों ने बहुत क्लियर कहा है कि महाभारत के युद्ध में निश्चित रूप से एटॉमिक एनर्जी का उपयोग हुआ, ये सारे प्रमाण मिल रहे हैं जैसे जो हो गई। लेकिन ये युद्ध की कड़ी ऐसी जबरदस्त है, उसको उन्होंने मूर्तियों में चित्रित किया है। कोई भी जाता है तो मस्त होकर देखने जाता है, और आमतौर पर उस चौराहे पर निकलने वाले रुकते ही रुकते हैं। इसलिए कुछ तो भीड़ वैसी होती है और कुछ हर बार सुबह शाम विशेष हो जाती है। मैं भी गया तो सच में मुझे भी कहा था, मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगा यार, बहुत देखा क्या है। मैं सोच के गया मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन जैसे ही पास में गया और दृश्य देखा तो अपने आप ही टांगड़ी रुक गई मेरी। हिंदी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इतनी हिंदी समझ में आती है? ये टांगड़ी ये बोलते हैं, हिंदी नहीं है शब्द। गुजराती में क्या बोलते हैं? पैर ही रुक गए अपने आप। पैरों को क्या बोलते हैं गुजराती में? पग। पग तो यार हिंदी में चलता है, मारवाड़ी में चलता है, सरपदी भाषा में टांगा बोलते हैं। टांगा, हाँ टांगा टांगड़ी आई है, वो हमारे गुजरात में वहां चलता है, तो टांगड़ी अपने आप रुक गए। योग से कभी आपका जाना हो जाए, कई देश भर में बहुत है। अनेक परिवारों के तो आजकल संपन्न सक्षम परिवारों के नियम से बन गए कि प्रति वर्ष नहीं तो 2 साल में एक बार पूरा परिवार या 3-4 परिवार जिनके आपस का संबंध प्रेम अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी मित्रता होती है, मिलके कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। क्योंकि संपन्न है, सक्षम है, घूमने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बस इतना सा ध्यान रखिए, उस घूमने में जहां जाते हो वहां से कोई न कोई जीवन दृष्टि लेने वाला प्रसंग जरूर देख के आइए और चर्चा करिए अपने बच्चों के ये क्या देख के आए हैं, और जाएंगे वहीं जहां जरूर कुछ मिलेगा। और भारत की धरती पर ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहां न कुछ मिले। हम न देखें, तुम्हारी मर्जी है, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे कहीं कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। इस मूर्ति में तब मैंने उसको पूछा, वहां के योग से मेरे साथ इंजीनियर्स ही खड़े थे, मैंने कहा इतनी गजब की मूर्ति है, कोटा में ऐसा कारीगर है आया है क्या कोई? क्या है तो सही सर, लेकिन इतना गजब का तो नहीं है। ये कारीगर आया है फ्रॉम इंडोनेशिया, उसका नाम बताया तो एक मुस्लिम कलाकार था, और मैंने कहा गजब बनाया वास्तव में। तो उन्होंने कहा कि हमको भी बहुत आश्चर्य हुआ, और उनको हम पूछते थे, वो बोले कि ये कला हमने जीवन यापन के लिए नहीं स्वीकार की, हमारे बाप दादाओं के आग्रह से कि बेटा जिंदगी में करो तो ऐसा करो कि दुनिया भी उसी को सीखे। तुम्हारी रोटी निकलनी चाहिए ठीक है, लेकिन चीज ऐसी करो। और इसीलिए रामायण और महाभारत के अलावा किसी प्रकार की मूर्ति को हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाते। है इस्लामिक जो कि मूर्ति के विरोधी होते हैं, वैसे तो उनको कोई परवाह नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं? ये वो देश है जहां भली मजहब के रूप में इस्लाम आया होगा, संस्कृति की धारा वो चल रही है जो आपके रक्त में है। नहीं तो उनके आज भी करेंसी में गणेश भगवान का फोटो क्यों है? पता किसी को नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, पता कर लेना किसी। इंडोनेशिया की करेंसी में आज चलती करेंसी, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, उस नोट पर 100 रुपए का नोट होता है, अपने 1000 रुपए का नोट है, अपने भी होता है ना, यहाँ उनके भी है, उस पर गणेश भगवान का लगा रखा है, आज भी लगा रखा है। और ये रहा पास में बॉम्बे, इनमें से तो बहुत लोग हैं जो फ्लाइट में जाते रहते हैं। क्यों सर, आप भी कभी गए होंगे? सांता क्रूज गए कि नहीं गए? सांता क्रूज, सांता क्रूज एयरपोर्ट बॉम्बे का सांता क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोई नहीं गया कभी? कहीं गया हो, तुम्हारा बेटा बेटी वो अमेरिका उनको छोड़ना है, अमेरिका से वापस लौट रहे हैं, वो वहीं पर अब आएंगे फ्लाइट से, तो आप नहीं जाते क्या प्रेम से? बेटा बेटी कोई भी अपना घर का बिल्कुल व्यक्ति आता है जाता है तो जाते कि नहीं जाते? प्रसन्नता से जाते कि नहीं जाते? आनंद से जाते ना। तो सांता क्रूज कोई गए ही नहीं क्या? गए तो होंगे। अरे अच्छा, सूरत में है क्या हवाई अड्डा? अंतरराष्ट्रीय है क्या? है? दुबई वगैरह फ्लाइट शुरू हुई, अंतरराष्ट्रीय नहीं है वो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी वर्ल्ड के विभिन्न प्लेन्स
विभिन्न देशों के प्लेन वहां आके उतरेंगे। हर जगह नहीं आते, वो जहां जहां व्यवस्था होती वहीं आते हैं, वो वहां पर आते हैं बॉम्बे में। वर्ल्ड के सब आते हैं, रशिया का भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, भारत के तो है ही, उसमें क्या बात है। इंडोनेशिया का भी वहां आएगा। एकमात्र देश है जिसका नाम है गरुड़ एयरवेज, गरुड़ इंडोनेशिया। और उनके इंजीनियर को पूछो कि गरुड़ क्या होता है, बोला यू डोंट नो। गरुड़ भगवान विष्णु का सबसे गजब का वाहन, बोलने वाला इंडोनेशिया का इस्लामिक परंपरा का इंजीनियर, बड़े गर्व से बोलता है। उन्होंने संस्कृति की विरासत को अभी नहीं छोड़ी, और इसीलिए सुकमावती वहां के राजघराने की बड़ी लेडी है। वो पिछली दिवाली के वक्त में अपने वहां परिसर में यज्ञ करवाती है। ये न्यूज सुनी कि नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, आपने किसी ने। अब तो आजकल इंटरनेट पे सब पड़ा रहता है, जब जैसे तब देख लो। सुकमावती वहां के परिवार की बहुत बड़ी महिला है, बहुत प्रभावी है, जिनकी बड़ी बहन भी राष्ट्रपति रही है कभी, मेघवती। और जिनके पिताजी सुकर्णो, वो भी वहां के राष्ट्रपति रहे। इतना बड़ा वो खानदान है वो मुस्लिम, लेकिन नाम है सुकर्णो। प्रेस वालों ने पूछा कि आपके वो खान नहीं है कि हमारे खान की जरूरत नहीं है, हम हमारी परंपरा को नहीं छोड़ते। तो सुकर्णो क्या है, तो कहा मेरा पिता महाभारत का परम 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 भक्त था, महाभारत की कथा का। लेकिन वो बोलते थे कि वैसे पांडवों का जीत हुई, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन असल में बहुत मूल्यवान कीमती पांडव था वो कर्ण स्वयं था। दुर्भाग्य से उसकी मां ने किसी कारण को रिजेक्ट कर दिया। जिसके माँ बाप अपनी संतान को रिजेक्ट कर देते हैं, या जो संतान दुर्भाग्य से अपने मां वडील को रिजेक्ट करती है, वो कभी सुखी नहीं हो सकते, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। बुरा कोई मत मानना, ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। और ये अगर समझ में आती गई तो वर्तमान में जितने डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं उनको कोई रास्ते निकालेंगे। जीना है आनंद से, तो हर चीज का महत्व है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। और सबको साथ लेके चलने की भावना नहीं रही तो कभी भी सुखी नहीं होंगे। पैसा चाहिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, एजुकेशन चाहिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप ही विचार करके बता दो, अपने परिवार में खूब पैसा है, अपने परिवार में खूब एजुकेशन है, बेटा बेटी बहू सब वेल एजुकेटेड है, पैसे की भी कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है। केवल इन दो कारणों से आप गारंटी से कह सकते हो कि आपके परिवार में कभी कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। मेरी बोली समझ रहे हैं क्या? कह सकते हो जिस परिवार में टोटल मेंबर जितने भी है, अभी मैं पूछता नहीं कितने मेंबर है, क्योंकि आजकल तो पता है मेंबर कितने होंगे, 1 2 3 मुश्किल से, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये आज जो 60 साल के आसपास है, उनको पूछो तुम्हारे भाई बहन कितने थे, आप किसी को पूछ लो, वो कैसे जिए। और अब बिल्कुल लेटेस्ट तो बात, इतना प्रोग्रेस गजब का हो गया कि अब कह रहे हैं कि बच्चे की जरूरत क्या है, शादी की जरूरत भी क्या है, लिव इन आनंद से मस्त रहो तो उसके दुख पा लेना। और मैं इशारा केवल कर रहा हूं कि इसकी मजाक सबसे ज्यादा रशिया ने की थी, और दूसरी बार उसके बाद की थी चाइना ने। दोनों ही देशों की दुर्गति कैसी हुई, हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, और वो रिटर्न में है। ये रिटर्न में जो कह रहा हूं मैं, परिवार की उदारता, परिवार की उपेक्षा मत करो कभी। ये किया है रशिया ने जबरदस्त, और चाइना ने भी किया है। उनकी देखा देखी आजकल अपने अनेकों लोग करने लग गए। सुखी और आनंद का जीवन जीना है, उसके जीवन सूत्र नेचर से जोड़ेंगे, मनमानेपन से नहीं जोड़ेंगे। और हम चाहे जितने इंटेलिजेंट हैं, चाहे जितने हम क्षमतावान हैं, पड़ोसी के सहयोग के बिना कभी जी नहीं सकते। कोरोना यहां भी हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? हैं? हुआ था। और जब कोरोना हुआ था तो कईयों की बेटा और बेटी तो अमेरिका में, इंग्लैंड में थे, अपने परिवार का एक भी पास में नहीं था। ऐसा भी हुआ कि नहीं हुआ है? जी हुआ है। हाँ। होता ही, उसमें क्या बात है। उस समय सबसे पहले किसके संकट के क्षणों में कौन काम आया है? सबसे पहले
मुझे सुखी होना तो मुझे दुनिया से क्या मतलब, दुनिया गई खड्डे में कोई चिंता नहीं, मुझे भाई से क्या मतलब, मुझे इससे भी क्या मतलब, मुझे पड़ोसी से क्या मतलब, तो जी के देख लो क्या मतलब समझ में आ जाता है। कोई जी नहीं सकेगा कभी भी। जीने के लिए आपकी अपनी क्षमता और आपका अपना संबंध चाहिए, लेकिन एक उदार सबके साथ राम राम, इसके बिना भी गाड़ी चल नहीं सकती किसी भी सूरत में, किसी की भी नहीं चल सकती। उन दोनों देशों ने इस विषय में सबसे ज्यादा खतरनाक खेल खेले हैं। चाइना ने भी खेला है, रशिया ने भी खेला है। उन्होंने आज लिखित में लिखा है कि हमने भारी गलतियां की है, कृपा करके ये बेवकूफियां कोई मत करना। परिवार के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण खेल खेला है तो रशिया ने और चाइना ने खेला है। जिनकी कभी इच्छा और कभी फुर्सत में हो तो उनके वो रिपोर्ट्स देख लेना। हमने देखा किसी ने क्या रशिया की रिपोर्ट कभी सुनी है? कभी देखना फुर्सत में। परिवार वो पहली कड़ी है जो आपको सारे संसार से जुड़ा देगी, और सबके साथ अगर अंतर मन से आप जुड़ी नहीं तो सुखी कभी नहीं हो सकते हो। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना डेवलपमेंट सब करेंगे। इसके अनुभव भारत की धरती के लोगों ने बहुत समय से लिए है, इसीलिए हमारे शास्त्रीय लोग गहले नहीं थे। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द यूं ही नहीं आया है, बहुत अनुभव में से आया है। और आज की तारीख में जितने प्रकार के उठा पटो उल्टे सुलटे दुनिया में धंधे देखते हैं, कभी शांति से किसी ने महाभारत देखी हो? पढ़ने की फुर्सत तो खैर असंभव है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन महाभारत वो बी आर चोपड़ा ने भी बनाया है। वो कभी कभी बिल्कुल आनंद से, बिल्कुल जब फुर्सत में हो तो वो कई बार आते हैं वापिस एपिसोड। देखे हैं क्या वो? देखे हैं क्या बी आर चोपड़ा वाला? मेरा तो निवेदन है कि आप जब आप फुर्सत में हो तो रखिए, कभी कभी देखो, आप 15 मिनट का टुकड़ा ही देखो, आधे घंटे का टुकड़ा देखो। धन्य हैं वो उनके बनाने वाले भी, उन्होंने ऐसा अद्भुत रूप से बनाया है। जीवन की यथार्थ सब बातें उसके अंदर आई है। कुछ बातें बदलती रहेगी भाई, वो नहीं बदल, चीजें बदल नहीं सकती, कभी भी नहीं बदल सकती। विश्व की धरती पर आज की तारीख में अनेक समझदारों के ध्यान इधर क्यों जा रहे हैं? जो देश हमसे बहुत बड़े बड़े, बहुत संपन्न कहलाते थे, बहुत साइंटिफिक कहलाते थे, वे भी आज झटके खाका करके अपनी परंपराओं की तरफ वापस घूम के क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं। किसी ने सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम है। आज योगा वर्ल्ड के कितने देशों के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान केवल एकदम प्रस्थापित हो चुका है, जिसकी प्रारंभ में मजाक उड़ाई थी उन्होंने। सुना है ना? तो नहीं सुना है? वर्ल्ड में सब जगह योग। और अब लंदन में किसी का संबंध है आपका, या आपके मित्र, आपके परिवार वाले, बेटा बेटी दामाद, कोई भी कोई लंदन में हो सकता है? मुझे मालूम नहीं है कि नहीं है। है क्या? नहीं है तो आजकल तो ढूंढने में देर क्या लगती है, नेट पर ढूंढ लो। किसी ने सुना है क्या लंदन की धरती पर एक संस्कृत स्कूल चल रही है, जिसको हम बिल्कुल बैकवर्ड बकवास मानते हैं, सब पुरानी फालतू की बातें, और पढ़ने वाला एक भी भारत का नहीं है उसमें, वो सारे बच्चे उन्हीं की पढ़ रहे हैं। तो सर उनको जाके समझाओ, अगर क्यों बेवकूफी करते हो, हमने बहुत कर लिया, इन साहित्य में क्या पढ़ा था। जेम्स संस्कृत स्कूल ऑफ लंदन। और प्रतिभा पाटिल जब अपने यहाँ राष्ट्रपति थी, कभी सुनी है क्या? प्रतिभा जी पाटिल सुना है? कौन से संघ की बात है? 2017। टप्पा मार दे, होशियार आदमी। लेकिन अच्छी बात है कि खट बोलना चाहिए, दुनिया में तभी चलता है काम। कोई चिंता नहीं, थोड़ी और पहले भाई 17 में नहीं, कोई बात। लेकिन बहुत अच्छी बात, एक बात अच्छी काम, बोल झरसीले बोलना तो चाहिए, खटाखट बोल देना चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। प्रतिभा जी पाटिल कभी राष्ट्रपति रही है भारत की,
और किसी प्रोग्राम के इंग्लैंड में गई थी, उसका ससुराल राजस्थान में, इसीलिए हमको और अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। लौटने के बाद में स्पेशली वो उसके जो पतिदेव हैं वो मूल राजस्थान के हैं, सीकर जिले के, स्वयं इधर की है शायद। पति है शेखावत, सीकर के। इंग्लैंड से आने के बाद में उसको पता नहीं जची, वो एक बार मैं अपने पियर में आऊंगी। पियर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप समझते हो पियर क्या होता है? समझते हैं? वो आई थी तो सब लोग उनका अभिनंदन करने गए। उन्होंने कहा भूल जाओ अभिनंदन, मैं इंग्लैंड गई थी इसलिए तुम मेरा अभिनंदन करने आए हो, लेकिन मैं देख के आई बात, बड़ी विचित्र बात देख के आई हूं। मेरे कार्यक्रम के अंदर वहां पर जो स्वागत हुआ, तो स्वागत हुआ है संस्कृत की वैदिक ऋचाओं से, संगच्छध्वम संवदध्वम, अभी भी नेट पर उपलब्ध है। मैं तो दंग रह गई, ये क्या हो गया? पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में ध्यान से देखोगे तो बहुत विचित्र बातें लिखी। ये हो क्या रहा है दुनिया में? सऊदी अरब, नाम तो सुना होगा, सऊदी अरब है क्या है? चिड़िया का नाम है कि हाथी का नाम है, प्लेन का नाम है कि गांव का नाम है कि शहर का नाम है कि क्या, खेडूत का क्या है? सऊदी अरब देश है, इस्लामिक कंट्री है। और खासियत कुछ है क्या? गल्फ कंट्री। इस्लामिक तो है ही, और क्या खासियत है सऊदी अरब की? और क्या खासियत है? गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री तो है ही, वो तो खाड़ी का देश है, वो एक ही बात है, खाड़ी का देश है गल्फ कंट्री। मक्का मदीना वहाँ। हाँ, इस्लाम शुरू वहीं से हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो, इस्लामिक परंपरा में सबसे महत्व का देश है वो। लेकिन आज की तारीख में आप में से भी किसी को पता ही नहीं, यहां से उठते देख लेना इंटरनेट पर, अभी कोरोना के बीच के अंदर उनके राष्ट्रपति और सरकार को पता नहीं क्या चीज, उन्होंने एजुकेशन के अंदर 4 बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हालांकि आतंकवादी ने उनको धमकी भी दी है राष्ट्रपति को, उनका मैं परवाह नहीं करता। वो राष्ट्रपति क्या बोलता है कि मार देना भले ही, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। सऊदी अरब का राष्ट्रपति बोला है आत्मा मरती नहीं, मार देना। क्योंकि चेंज क्या किया है, तुलना बहुत आश्चर्य की बात है, सऊदी अरब के राष्ट्रपति ने अपने एजुकेशन में चेंज करवा दिया। आने वाले कुछ ही एक वर्षों में मेरे समस्त बच्चे और बच्चियां नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्व के श्रेष्ठतम शानदार नागरिक बनेंगे। और परिवर्तन नंबर 1, ध्यान से सुनना, और आपको भी मजा आ जाए तो बोल देना कुछ न कुछ, जय श्री राम है, जय भारत, क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? जय श्री राम बोलेंगे, बोलेंगे ना? हाँ, चेंज नंबर 1, सऊदी अरब के कोर्स में स्कूल एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चों को अनिवार्य रूप से रामायण की प्रेरक कथाएं पढ़ाई जाएगी। नंबर 2, हमारे बच्चों को श्रेष्ठतम नीतिज्ञ बनने के लिए, सब संकटों से निकलने के लिए महाभारत की प्रेरक कथाएं पढ़ाई जाएगी। समस्त कॉलेज के बच्चे और बच्चियां जितने भी हैं उन सबको जीवन सुखी रहने के लिए गीता का दर्शन पढ़ाया जाएगा। कृष्ण वाली गीता, वो गीता नहीं, मेरी बहन गीता है, वो नहीं। और चौथा, सभी को सुखी रहने के लिए पतंजलि का योग दर्शन, उसका निरंतर अभ्यास कराया जाएगा। ये सऊदी अरब में किसी ने पता था क्या मैं जो कह रहा हूं? ये मालूम था क्या किसी को? जिनको मालूम नहीं था अभी सुना है, कोई ऐतराज की बात नहीं, वो हाथ खड़ा करो, आज ही सुना है। अच्छा, अब पहले सुना था, वो सुना हुआ था। और कौन रह गए तीसरे, जो इधर आए ना उधर आए कि बाबा गप्पे मारता, अपने क्या हाथ खड़ा करूं, दुनिया यूं ही चलेगी। कईयों की आदत होती है, अरे दुनिया यूं ही चलती है, साला क्या झगड़े करता है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अरे चलेगा तो सही, तुम पीछे जाओगे, फिर ध्यान रखना पीछे जाओगे। इज्जत से जीना है तो अपने शुरू तो परिवार से ही होगा। कोई परिवार दुनिया का जी नहीं सकेगा अगर
आसपास के 5-7 परिवारों से भी अत्यंत पवित्र प्रेम भरे संबंध न रखे तो। और इसमें कोई एक फैक्टर नहीं आना चाहिए कि मेरी जाति का होना चाहिए, मेरी गली का ही होना चाहिए। नो, मेरे समान स्तर के कोई भी हो सकते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते। सुखी जीना है तो हमेशा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, लेकिन सजग भी रहना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा। दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है कि सऊदी अरब ने इतने बड़े निर्णय कैसे कर दिया। उनको आतंकवादियों ने धमकियां भी दी है और राष्ट्रपति ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, आत्मा तो अमर है। सऊदी अरब का राष्ट्रपति बोला आत्मा अमर है? अरे यार, आत्मा अमर कहां से आई? आजकल तो हमें नहीं मानते आत्मा फात्मा क्या होता है इस फालतू। ये हमारे पापा ने, वडील पापा ये समझते नहीं, फालतू करते हैं बिल्कुल। राम क्या पढ़ा है, बकवास है। बकवास भी होगा आपको लगता है, लेकिन एक बार शांति से उसके मूल थीम को समझिए। सुखी जीवन, सार्थक जीवन के लिए हम हमारे शुरू तो घर से होंगे, लेकिन निरंतर हर जगह बैलेंस चाहिएगा। गली से भी राम राम। और जिनके बेसिक रूप से परिवार कभी गांवों में रहे हैं, जो मूल तक गांव के लोग हैं, वो याद कर लो। गांवों के अंदर शब्द चलते थे, मैं तो राजस्थान का हूं, गांव में शब्द चलते थे, गांव की बेटी, गांव का जवाई। गुजरात में चलते कि नहीं चलते मुझे पता नहीं, कोई जाति का क्या ना हो, गांव की बेटी और गांव का जवाई। आज इसको हमने कई प्रपंच में ऊंच नीच में डाला होगा, लेकिन आज से 100 साल पहले भी जब उस गांव में कोई किसी का जाता था तो अपने गांव की बेटी जो यहां पर जिनकी शादी हुई है उनके घर जाके, चाहे जो जाति हो, उस बेटी को अपनी बेटी के समान मान के उसको एक प्रकार से कोई भेंट दे के आते थे। अभी भी ये टूटी नहीं है, पूरे देश में चल रही है, कम जरूर हुई है, टूटी नहीं है। विश्व का सबसे सचमुच उदारतम गजब का कोई प्रवाह है तो भारतीय प्रवाह है। नहीं तो भारत जितना लंबा चौड़ा आज दिख रहा है ना, इससे भी बड़ा था, अभी भी खूब बड़ा है, कम नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ा था। और बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक भारत कहलाता है, यह ही नहीं कहलाता है। ये मूलतः हमारा सोच क्या था, मजहब पर रुके नहीं हम। मजहब कुछ भी हो, मानो न मानो तो भी कोई ऐतराज की बात नहीं है। भारत की धरती पर हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है ईश्वर को मत मानो, कोई चिंता नहीं, तो भी वो ऋषि कहलाया चारवाक। वो कम्युनिस्ट था पूरा, उसने कहा कोई भगवान नहीं होता है, कोई भगवान कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, ये मर जाएगा क्या कौन देखेगा, कर्ज लो और घी पियो, साला रोता रहेगा, मस्त रहो। ये हमारे एक ऋषि ने कहा है, चारवाक। लेकिन वो एक अपना उसने थ्योरी रखी से कहा, उसको भी कहा ऋषि है ये। लेकिन थपेड़ों में से अनुभव में आते आते समझ में आया परिवार, समाज और समस्त विश्व के साथ एकात्म सूत्रता बहुत जरूरी, अदरवाइज तुम जी नहीं सकोगे कभी भी। और उसी का सामर्थ्य ऐसे अनेक ऋषियों में आया, जिसमें एक इसी युग के परम ऋषि थे स्वामी विवेकानंद। क्या खास बात थी, अंग्रेजों के देश में गए थे, वो तो अंग्रेज वो तो पहले से अंग्रेजी जानते थे, उसमें क्या खास बात थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इनकी अंग्रेजी हमसे ही गजब की है, इनके चेहरे की चमक हमसे भी गजब की है, इनका सोच हमारे से गजब का है। ये अनेक अनुभवों के थपेड़ों में से आया है, ऐसे नहीं आया है। और सऊदी अरब को कैसे जच गया, ये मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन जच गया उनको। इस समय पूरे वर्ल्ड में तेज गति से भारत की प्राचीनतम परंपराओं के अंदर का बिल्कुल सोया हुआ जो सत्व है, या सरल सी भाषा बोलूं जो मूल साइंस है, वो उनको समझ में आ रही है। ये क्या विचित्र बात हो रही है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी जहां पर ये पूरी स्पेस साइंस के बारे में नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, 2000 साइंटिस्ट है वहां, 200 हमारे भी हैं, भारत के भी हैं, भारत के 200, पूरे संसार के 2000 किया सब पश्चिम जगत के लोगों ने। तो सारे डायरेक्टर्स उन्हीं के ही हैं, निर्णय वही करते हैं, निर्णय जो करना वो करें। अभी कुछ साल पहले उन्होंने निर्णय किया
कि ये पूरी स्पेस को ढूंढने के लिए हम खूब माथापड़ी करें, लेकिन कई प्रकार के असफल हो जाते हैं। किसी न किसी देव की पूजा करनी चाहिए, उनके दिमाग में आया, पता नहीं क्यों आया। लोगों ने समझा कि ये षड्यंत्र है, पूजा के नाम पे वो ईसा मसीह लाके थोपेंगे सब पे जबरदस्ती। उन दोनों ऐसा ही करते थे, लेकिन वो ईमानदार साइंटिस्ट थे, उन्होंने नहीं थोपा। कमेटी बिठाई और कमेटी ने कुछ साल तक माथापड़ी करके अंतिम निष्कर्ष क्या दिया, स्पेस साइंस का देव एकमात्र कोई है तो वो भारतीय शास्त्रों का भगवान शंकर है। सुना है किसी ने ये मैं जो कह रहा हूं? भरोसा भी नहीं होगा, ये बड़ कपड़बाजी करता है। मैं तो यही रहूंगा, चिंता मत। आपके जेब में ये है कि नहीं है? आजकल हम फकड़ों के पास ही है कि नहीं है? इंटरनेट कनेक्टेड है ना, आपके पास है ना? तो यहां से अभी मत निकालना। यहां से उठते ही जब चाय वाय पियोगे ना, चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? शानदार मुस्कुराती हुई खीर खाएंगे, तो खीर के साथ साथ में मेरे तो यहाँ दाढ़ी में फंस जाएगी। तुम सब फ्री हो, तुम आराम से खाते जाना और ये देख के भी जाना। देखना इसमें क्या लिखा हुआ आता है। सर्न लेबोरेटरी का नाम है उस रिसर्च सेंटर का, ये स्विट्जरलैंड वाला, CERN, करेक्ट? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिस्क। सही है ना? मेरी गप्पों में दम है कि नहीं? एक बार सब बोलिए तो, CERN। ये वो सेंटर है, आप निकालना गूगल सर्च पर। उसके फ्रंट में एंट्रेंस पर ही उन्होंने वो मंथन करके अपने आगे के लिए पता नहीं क्या उनको जची वो जाने, लेकिन भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति स्थापित की है। और वो इतनी सी नहीं की है, अपन तो यूं करके कहते हैं ये दादा दादी, ये नाना नहीं, ये माथा पड़ी करते हैं तो लग गए थोड़ी सी रखती, कर दे पूजा, कर दे पूजा। करना वो शान से करना, नहीं करना तो नहीं करना। 2 मीटर हाइट की है वो। 2 मीटर का मेरे ख्याल से कोई यहाँ कोई आदमी भी नहीं होगा। निमेश भाई हो सकते हैं लंबे थोड़े, लेकिन 2 मीटर नहीं होंगे, है क्या? नहीं है, 2 मीटर बड़ा होता है। 2 मीटर की नटराज की बहुत भव्य मूर्ति स्थापित की है इस सेंटर पर। ऐसे ही अमेरिका मूल क्रिश्चियन कंट्री है, उनका तो संविधान में बाइबिल के बिना कुछ नहीं हो सकता। बाइबिल के सम्मान के बिना वो कदम ही नहीं धर सकते। लेकिन ओबामा ने अपने कार्यकाल में अंतिम दिनों में निकलते निकलते कहा कि बहुत कीमती विषय में करके जाऊंगा, और करके गया। उनको उनके मित्रों ने पता नहीं कि उन्होंने दिया होगा, सरस्वती की मूर्ति भेंट की थी। वही इंडोनेशिया से आई थी, मुस्लिम कलाकारों ने बनाई थी। इतनी भव्य मूर्ति हो, 16 फीट की हाइट है। इतनी सी मूर्ति नहीं है कि दीवो लगा दे, ऐसा नहीं है वो। 16 फीट की हाइट है वो, कमल के फूल पर है। हमारे यहाँ तो गलती से कहीं मोदी जी का दिमाग खराब है, वैसे लोग कहते हैं दिमाग उनका खराब है, उल्टे उल्टे कभी गंगा जी में जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी महादेव की पूजा करते हैं। और वो उठा करके अगर वास्तव में चल कमल का फूल वहां लगा दिया तो कहेंगे ये तो वो बीजेपी का आ गया। अरे कमल का बीजेपी कल की है, कमल का फूल तो कब युग युग से चल रहा है। सरस्वती लक्ष्मी दोनों का है, नहीं है क्या? ओबामा ने इसकी परवाह नहीं की, कमल के फूल पर महा सरस्वती को बिठाया है। 16 फीट की हाइट है, और लिखा है वो भी पढ़ लेना, सिंपल सी इंग्लिश है, वो पढ़ लेना। नटराज की मूर्ति के नीचे का भी पढ़ लेना, क्लियर कट लिखा है कि ये परमाणु विखंडन की प्रक्रिया की तरफ कोई मैसेज कर रहा है। इतना जबरदस्त ये स्टेच्यू है, इस सिंबल को यह कहा है उन्होंने। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अद्भुत रूप से पहली बार दुनिया को लग रहा है कि भारत की परंपरा से चली आई ये प्रवाह की संस्कृति, ये रिलीजन वाले के अंदर नहीं बंधी हुई है। रिलीजन बहुत छोटी चीज होती है, रिलीजन कुछ भी हो सकता है, जाति यानी धंधा कुछ भी हो सकता है, लेकिन संस्कृति सबकी एक है। और ये ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने बहुत पहले कहा था, पूरा संसार भी मेरा परिवार है। केवल सद्भावना की बात है, आवश्यक नहीं है कि आप जाओ अमेरिका, लेकिन आप तो गुजराती लोग हो। आज भारत की धरती पर या तो गुजरात है या पंजाब है, जिसके घर घर से कोई न कोई बेटा या बेटी, माने मारवाड़ी बोले छोरा या छोरी, वो अमेरिका गियो, अटे बटे अमेरिका गियो,
इंग्लैंड गियो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से गुजराती लोगों के आज बच्चे बच्चियां दामाद या जो भी कुछ है, ये सच है? सच्ची गप्पे नहीं है? नहीं है? तगड़ा गप्पा है। या पंजाब के लोग गए हैं या गुजराती गए? और गुजरातियों के बारे में गर्व के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने प्रारंभ में केवल कमाया होगा भले ही, लेकिन आज की तारीख में अपनी सांस्कृतिक चैतन्य को जिस प्रभावी ढंग से वहां खड़ा किया है, उसमें गुजरातियों का भारी योगदान है। आपको खुशी लगती है तो बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप वैसे ही गुजराती बनोगे नहीं बनोगे, दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, चिंता नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की चैतन्य को लेकर के जाएंगे। ये गरज करके ऋषि और क्या बोला था। और सच में इस देश की संस्कृति के अंदर कुछ सामर्थ्य न होता तो अमेरिका की धरती पर उसको पूछता कौन। विवेकानंद जी का प्रारंभ के कुछ दिन बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भारत की धरती है, मान अपमान की परवाह नहीं करेंगे, सत्य के साथ टिके रहेंगे। और ऐसे गजब के जमे कि पहले झटके में सब सरेंडर हो गया अमेरिका। और कुछ समय तक इंग्लैंड घमंड के साथ में विवेकानंद जी को अपने यहां नहीं बुलाया, क्योंकि विवेकानंद गुलाम देश का आदमी, हम क्यों बुलाएंगे। फिर भी उनका मूल तेज इतना 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 जबरदस्त प्रभावी हुआ कि आखिर इंग्लैंड को भी झुकना पड़ा और विवेकानंद को अपने ही जीवन में इंग्लैंड ने इनवाइट किया और गए हैं वहां पर। गए तो दुनिया को प्रभावित किया और गजब का प्रभावित ऐसे हुआ कि उन्हीं की वहां की बिल्कुल वो बेटी वो इनकी शिष्या बन गई, जो यहां निवेदिता कहलाई है। और आने के बाद में भली देश गुलाम था, भली देश उस समय बहुत ही कमजोर था, आज तो फिर भी डेवलप हुआ, उस समय इतना डेवलप नहीं था, बहुत संकटों में था। तो भी वो संस्कृति के कारण से ऐसी जुड़ी कि उसके बाद में कष्ट बहुत पाया है निवेदिता ने, लेकिन मजबूती के साथ इस देश की बेटी बन के रही, वो कहीं नहीं गई। आज तो बहुत सारे शुभ परिवर्तन हो गए हैं। विश्व की धरती पर सांस्कृतिक चेतना के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर ये परिवारों में से होता है। विवेकानंद केंद्र ऐसे जीवन वृत्तियों को खड़ा करके विश्व की धरती पे नवीन अद्भुत परिवर्तन के लिए लगा हुआ है। और मेरा सौभाग्य, मैं जो कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने अपनी आंखों से इस विभूति को देखा है, जिस विभूति ने विवेकानंद केंद्र का महापरियोजना शुरू की। उनका नाम था, बोलिए तो सही, इनके अलावा बोलेंगे तो बोलिए तो, इनके अलावा बोलिए, जो जीवन वृत्ति नहीं बोलेंगे, बाकी बोल सकते हैं। उनका नाम था विवेक केंद्र। बहुत विभूति थी, विलक्षण विभूति थी। संघ के सरकार थे वो, पूज्य गुरुजी और इनके बहुत मंथन चला है। उसी में से संकल्प मूलतः भारत की ये दैविक सांस्कृतिक विरासत केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे संसार के कल्याण के लिए में हमारा ही दायित्व है। और किसका दायित्व है? और दुनिया के पास तो है ही नहीं। और इसीलिए असंभव सा दिखने वाला काम उन्होंने अपने बीड़ा उठाया। तब बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने कहा था कि एकनाथ जी और ये जितने ये लोग हैं, ये इनके दिमाग खराब है, ये संभव नहीं है, कभी कुछ नहीं होगा। ये कथा अभी मैं नहीं कहता, न कहने की जरूरत है, कईयों को मालूम होगी, नहीं तो पता करिए। लेकिन कोई भी पराक्रमी पुरुष अगर निश्चित रूप से पवित्र मन से चलता है तो असंभव को संभव करता है। उसी का नाम है एकनाथ आनंद, उसी का नाम है विवेक केंद्र। थोड़ा इशारा इन्होंने किया था, मैं भी वही कह रहा हूं। पूर्वांचल के समस्त बहुत खतरनाक क्षेत्रों में मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले इंजीनियर्स अनेकों ओएनजीसी में लगे हैं। मैं प्रचारक बना तो मुझे कहते थे, यू स्पॉइल्ड योर लाइफ, ऐसा बोलते थे। फिर बोलने लगे कि यार जोशी जी, आपने अपनी लाइफ तो स्पॉइल की, लेकिन एक बात तो है, वो असम और वो एरिया जो है वो सबका सब देश है, या तो कट जाएगा, वो रहेगा भी नहीं। लेकिन सॉल्यूशन निकला तो शायद आप लोगों की थीम से निकल सकता है। अभी दिल्ली में पिछली बार मैं गया किसी शादी में, वो भी आ गए थे योग से, किसी संपर्कित राजस्थान का व्यक्ति, उसकी शादी थी। हम भी चले गए, हमको बुलाया प्रेम से, अपने क्या है, हमको तो कोई कहीं प्रेम से बुलाया, किशोर जी ने यहाँ बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। मेरी क्या गलती है? बाप को परेशान हो रहे, मेरी गलती नहीं, ये सब और ड्यू टू किशोर। प्रेम से बुलाया तो दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो हमारे वो पुराने मित्र के बेटे, वो भी इंजीनियर्स हैं, जो पूर्वांचल में जिनका डिप्यूटेशन है भैया, वो लगे हुए हैं वहां।
मैंने यार वो कब टूट रहा है, नागालैंड कब टूट रहा है, त्रिपुरा कब टूट रहा है भारत से, असम कब टूट रहा है। उसने कहा सर प्लीज एक्सक्यूज मी, वो बातें पुरानी हो गई, अब तो कुछ नहीं टूट सकता। उधर तो त्रिपुरा में भी जय श्री राम हो रहा है। त्रिपुरा में जो 27 साल तक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट रही है, चाइना बांग्लादेश के षड्यंत्र सब चले हैं, और हमारे अपने बंधुओं को हमने तुच्छ माना था, ये तो क्या है, ट्राइबल है, ये वैसा है। हमारा रोग तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, बाकी चीजें अपने आप ठीक होने वाली है। और उसी में से विवेकानंद केंद्र के जीवन वृत्ति, ये बालिका हो चाहे बालक हो, कब से लगे हुए हैं तब से। और आज इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य तो बोलना ही पड़ता है। ये नहीं कह, हम नहीं कहेंगे तो दुनिया में अपना आ जाता है। विवेकानंद केंद्र और इसी प्रकार के काम जितने दुनिया में चले हैं, भारत में चले हैं, उसके कारण आज असंभवता दिखने वाला दृश्य आज बिल्कुल बदलता जा रहा है। दिवाली के मौके पे आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मुझे ऐसा भ्रम है कि आप बहुत प्रेम से सुन रहे हो। ये भ्रम है कि सच है? इस ज्योत को आप भी अंतर मन में अपनी अपनी बुद्धि से जितना जैसा जिसको जचता है, अपने घर में ये ज्योत जगेगी। सांस्कृतिक चेतना सर्वोच्च बिंदु है, और उसी के लिए बिल्कुल जीवन में सब लगे हुए हैं। आप सबके बिल्कुल शुभकामना से इनका उत्साह, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हैं? तो आप इनको उत्साह देने वाले हो, देने वाले हो हैं? आप ढंग से जी माना तो वैसे नहीं होगा। एक बात पक्की है, दुनिया का यथार्थ है, सुख दुख आना जाना, विभिन्न चैलेंजेस कभी बंद नहीं होंगे। ये तो कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन मनुष्य ठाठ से कब जी सकता है? उसके 3 सूत्र है। वो तीनों सूत्र विवेकानंद केंद्र को, संघ परिवार के विभिन्न संगठन अपनी अपनी विधि से वही कर रहे हैं। और आपको जस्तो तो बुलवा दूं मैं एक बार आप सबसे, पीछे बोलेंगे क्या? सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का इसी में से निकलने वाला है। वहीं से शुरू कर रहा हूं मैं, तब जाकर के जीवन ज्योत जलेगी। ये दिवाली के दीप सार्थक तभी होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। हम अपना चैतन्य जगाए, बोलने में कंजूसी मत करिए। अभी मुंह बंद है और मिठाई आते मुंह खोलेगा टप, रसगुल्ला आएगा गप। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? मुंह खोलेंगे नहीं खोलेंगे? तो मेरे प्रभुओं कृपा करके वो रसगुल्ला तो आएगा ही आएगा, या वो श्रीखंड आएगा ही आएगा। अभी ये बाबा नाटक कर रहा है तो 2 मिनट आप ही कर लो, थोड़े मैं भी राजी हो जाऊंगा, क्या तकलीफ हो जाएगी। हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, ये तीनों सूत्र जरूरी है। मूल चेतना का जागरण, ये भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे प्रयोगों से होता है। ये पूजा मूल तो इसीलिए हुई थी और कोई कारण नहीं है। और भारत की धरती के जितने प्रकार के हमारे ये पर्व हैं, ये पर्व इसी को जागृत करते हैं। पर्व आनंद से मनाओ, और घर में 2 मिनट के लिए चर्चा जरूर करो कि दिवाली क्यों है, होली क्यों है, नवरात्रि क्यों है, जैन समाज में आती है क्षमा याचना क्यों है। ये बहुत कीमती विषय है, थोड़ी चर्चा कर लो, फिर ये सब अपने आप चमत्कार करेगी। हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभाए। घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले। सुख में भी सबको जोड़े,
बहुत बार खोपड़ी ऐसी घूम जाती है, जब मुझे बहुत ज्यादा व्यस्त मिल जाती है, भाइयों की छोड़ देती है। मेरे भाई में अकल नहीं सारे को, मैंने पड़ोसी की भी ऐसी तैसी हो जाती है। और ऐसे व्यवहार से अंतोगत्वा इनको भी जबरदस्त नुकसान होगा और उसके बाद उठ भी नहीं सकोगे। सुख में भी सबको जोड़े, दुख में साथ नहीं छोड़े, सुख दुख की संवेद शक्ति से, अपने सब उद्योग फले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना सतत चले, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, हर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, सुख में ना जागे अभिमान, दुख में ना भूले निज भान, अपना मूल भान, अपना मूल जहां से, उसको कभी नहीं भूलना। और शायद इसीलिए कहा है कम से कम पर्व के दिन अपने वडील को चरण छू करके प्रणाम करो। अभी भी ट्रेन में आ रहा था, उस दिन योग से पेपर में छपा, मोदी जी अहमदाबाद आए और वो जाकर के माता जी को क्या बोलते हैं, उनको चरण छू रहे थे, वाह वाह बोलते हैं। और व्रत बहुत है, वो तो नहीं, तो ये भी अगर 70 से ऊपर है तो वो भी 90 के आसपास होगी, 100 हो गई, गजब गजब गजब, 100 हो गई। धन्य हो, धन्य हो। एक कोई था बिल्कुल वेल एजुकेटेड जेंटलमैन, स्पेशल सुपर हिट, कई होते हैं उसमें, क्या बात है। बोल क्या यार प्राइम मिनिस्टर हो गए, साले में कब अकल आएगी, फालतू बूढ़ों के चक्कर पड़ता है। बोलते ही पता नहीं आसपास की सारी कोच, एसी कोच के लोग थे, आमतौर पर ऐसी बातें बोलते नहीं, वो अपने आप सुपर ही समझते हैं। उस दिन सबको गुस्सा आ गया, एकदम सबके तो उछल के नीचे कूदे। उसको कहा तुम यार क्या हो, इंसान हो, ऐसे कैसे बोल गए। सारे पढ़ गए तो फिर उसको क्षमा याद है। उसने कहा क्षमा की बात नहीं है, तुम्हारे मुंह से निकला कैसे ऐसे, तुम्हारे माँ बाप जिंदे है कि नहीं है। कहे तो सही, तो कभी जाते नहीं है क्या। कभी कभी तो जाता हूं। अरे तो उन्होंने क्या पाप किया, तुम्हारे डेवलपमेंट में, तुम्हारे विकास में उनका कोई योगदान नहीं है क्या। ये कर रहा है, इसमें क्या गलत है। ये गए थे गंगा जी में, मोदी जी गए थे ना, तो पार्लियामेंट में लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर, सेकुलरवादी देश का प्राइम मिनिस्टर गंगा में क्यों डूब लग रहा है। तो अमित शाह को बोलना पड़ा, तो क्या कादे में जाके कूदेगा, कीचड़ में कूदेगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहली बार देश की धरती पर मजबूती के साथ में कुछ प्रमुख स्थान के लोग भी कुछ गरज के अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बोलने लगे। सुख में ना भूले अब तक, सुख में ना जागे अभिमान, सुख में ना जागे अभिमान, दुख में ना भूले निज भान, दुख में ना भूले निज भान। सच्चा मार्ग कभी न त्यागे, सच्चा मार्ग कभी न त्यागे, अनगिन आए कष्ट भले, अनगिन आए कष्ट भले,
जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले हम अपना चैतन्य जगाए हम अपना कर्तव्य निभाए सभी ने अपना अपना ढंग से कर्तव्य ड्यूटी नहीं निभाई होती तो कोरोना में हम बर्बाद हो जाते। लोगों ने तो कहा था दुनिया ने कि लाखों मरेंगे भारत में। गए जरूर हैं लेकिन संभल भी बहुत गए हैं। और सूरत में भी अनुभव था कि नहीं चाहिए, अहमदाबाद में अनुभव है कि नहीं है, राजस्थान का मैं बताता हूं। डॉक्टर से लेकर के अपने स्वीपर तक इतनी हार्ड ड्यूटी दी है उन्होंने भी, उनके भी परिवार थे, उनके भी घर थे, बहुत गजब की ड्यूटी दी है। कभी गलतियां भी होती होगी, ऐसी बात नहीं नहीं होती, मनसा ने होती होगी गलतियां, लेकिन बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स हो चाहे इवन स्वीपर हो। और स्वीपर तो बोलते थे कि हमारी कुछ होगी भी कोरोना के तो क्या फर्क पड़ने वाला है, पूरी कॉलोनी एक भी स्वीपर के वो ही नहीं। तथा कथित वीआईपी बने हुए अधिकांश तो वही लफड़े वही हुए, पता नहीं क्या चक्कर है। अपना अपना सहज धर्म भूलते हैं तो फिर लफड़े बहुत आते हैं। सुख दुख कभी बंद नहीं हो सकते, बैलेंस रखना। और ये सांस्कृतिक मूल्यों के नहीं होता है, सांस्कृतिक विरासत का नाम है भारतीय संस्कृति। और विवेकानंद जी ने वही गर्जना की थी और समझाने के लिए, क्योंकि हमारे खोपड़ा खराब हो गया था, ये गर्व से कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू को पंथ नहीं है, पूजा की पद्धति नहीं है, सभी को जोड़ने वाला एकमात्र है। और आज की तारीख में अगर आपके कोई मित्र या आपके परिवार वाले अमेरिका में रहते हो, चाहे सऊदी अरब में रहते हो, चाहे दुबई में रहते हो, आप पूछो वाह हिंदुत्व का नाम लेना आज शर्म की बात है या गौरव की बात है, आप पता कर लो। आप सुना किसी ने? आप अपने मित्र से पूछो, अपने परिवार वाले से पूछो, दुबई में कोई नहीं रहता क्या? आपका परिवार वाला कोई किसी के नहीं रहता क्या? है? दुबई तो बहुत पास है, रहता है। दुबई में अपने भारतीय लोगों से पूछो कि आज की तारीख में अपने आप को हिंदू महसूस करना गर्व की बात है कि दुख की बात है? आप मत बोलिए, अपनी उनकी ओर से बोलो। वो कहते हैं परिवर्तन है अभी है। आप भी सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अरे नहीं परिवर्तन होता तो भाइयों उस देश के अंदर ये इतना शानदार मंदिर का उद्घाटन कैसे हो गया अभी भी? और सऊदी अरब में अब होने वाला है, बहुत गजब का होने वाला है, तो इसी गजब का होने वाला है। लंदन की धरती पर स्वामीनारायण वाला मंदिर कितना जबरदस्त भव्य बना हुआ है, ये हो कैसे सकता था? पूरी दुनिया की धरती पर लोगों को महसूस हुआ है कि भारत की धरती की सांस्कृतिक विरासत अद्भुत है, अनमोल है। हमको भी मालूम है, बस थोड़ा सा प्रेम से आप लोग तो गुजराती इस विषय में तो नंबर 1, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी वाणी में ही गजब का मिठास है। केम छो, आओ, मजा आता है। मैं मारवाड़ का आदमी, मैं मेरे साथ बोलूँ वहाँ हमारे वहाँ तो बोली इतनी कड़क है कि पूछो मत। इसलिए हम वहां पर बोलते हैं भैया मीठा बोलो, मीठा कैसा? तो मैं जाके कहूंगा गुजरातियों जैसा। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं कि नहीं बोलूं? अरे शर्मा क्यों रहे हो? मैं घर को ही चिंता मत करो। मैं आपके नाम से कोई अच्छी बात मुझे ध्यान में आ जाए तो दुनिया में कहूं कि नहीं कहूं? जोर से कहो। और अगली बार फिर आऊंगा नई अच्छी बात ढूंढने के लिए, क्योंकि आपके पास मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सारा खजाना गजब का है। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो अभी तो बोल दो कम से कम। तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल। गुजराती नहीं, ये मारवाड़ी भी नारा। गुजराती जैसी ये चिंता मत करो, लेकिन तो भी कुछ कुछ अलग है बोलने में। कोई क्या कंजूसी करना? तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल। मारवाड़ी बोलते हैं थारा, और मैंने मारवाड़ी कहा, मैंने क्या घबराते हो यार, इसको थ का त कर दो तो हो जाएगी गुजराती। सही करो गलत करो, मुझे ज्यादा नहीं आती, मुझे इतनी आती है केम छोरा। सही है। तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल होगी गुजराती। तारा तो गुजराती और थारा तो मारवाड़ी और तेरा तो हिंदी। उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल
तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, कल आपकी गुजराती में सावधान किया कि मीठो ढंग से बोलना, मीठू बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। या मीठू तो नमक को बोलते हैं। मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, दीनी है विधाता थाने अमृत वाणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आख्या ताणी, आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मारवाड़ी की बता रहा हूँ। वहां ऐसे ही होता है, थारो नाम की है, आप बोलते तमारू नाम शू छे, क्या मधुर बोलते हैं। दीनी है विधाता थाने अमृत वाणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आख्या ताणी, सोच बाता गहरी धीरज धर कर, मन सु वचन सु कर्म सु शुभ कर, अब तो भीतर का पट खोल, अब तो भीतर का पट खोल, देख माय नाचे मन मोर, देख माय नाचे मन मोर, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल, बोलिए सदगुरुदेव की जय। मृदु बोलेंगे, सजग रहेंगे, निरंतर बोलेंगे, और सांस्कृतिक की धरोहर है हमारी, उसको हमारे पास संजो के रखेंगे। परिवार में भी आनंद रहेगा, दुनिया में भी इतना जबरदस्त आनंद आज इसी संस्कृति के कारण हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम तो वडील हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, कौन कब तक चला जाता है, लेकिन ये तो गारंटी आप सब के सब लोग अगले 10-20 साल रहने वाले हो गए नहीं हो। देख लेना चमत्कार अगले 10 साल में क्या जबरदस्त होते हैं। लेकिन तब तक संकट एक आएगा, अगर कहां से बाहर के विदेशों ने कि हमको आपकी संस्कृति की शिक्षा चाहिए, इसीलिए आपके ये सूरत ही कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, सूरत ही कहलाएगा। सूरत से 1000 ऐसे शिक्षक भेजो जो बिल्कुल हमारे संस्कार की सारी संस्कृति से शिक्षा का अच्छी प्रकार से यहाँ करवा सके। उस समय सूरत से 1000 लोग ऐसे भेजने की स्थिति में आ सकती है क्या, कि जो उनको संस्कारों की सारी शिक्षा बढ़िया ढंग से, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने लेकिन जीवन के संस्कार समझा सकें। ऐसे अपने यहाँ पर 10 साल बाद मांगे तो 1000 लोग मिल सकते हैं क्या? सूरत में तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। राजस्थान में तो एक ही नहीं मिले, चित्ते दबा बचा बचो टन गोपाल। मैं उनको मजाक में कहता हूं, भाइयों फिर तब ये होगा कि हमारे संस्कार सीखने के लिए भी, विवाह संस्कार, ये अग्नि संस्कार, फलाना संस्कार, कोई भी अच्छे संस्कार, इंग्लैंड से या जर्मनी से कोई पंडित आएंगे और अब उनको फीस देनी पड़ेगी, वो सिखा के जाएंगे। ऐसा दिन मंगवाना है क्या? वैसे मना नहीं है, दुनिया से हम सीखेंगे जरूर, लेकिन हमारी धरोहर तो हम ही करेंगे। अपने परिवार में जचे जो बच्चों को सिखाओ, लेकिन अपनी संस्कृति की अच्छी बात जो आपको अच्छी लगती है, रविवार को कम से कम आधे घंटे के लिए कोई न कोई अच्छी बात अपने बच्चों को हम सिखा रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मुझे नहीं मालूम है। करें तो कैसा रहे, करें तो कैसा रहे, करे कौन?
इसको भोजन के इसमें ढूंढना और डुबकी खा के आनंद से मलाई खाना और प्रेम से आनंद से जाना। सबको फिर से नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा।